Welcome friends, welcome to our YouTube channel English Learning with Rohit. Friends, today I am going to discuss a very important topic of English language called parts of speech. Friends, I will be using bilingual method so that whatever is being spoken by me, whatever is being taught by me could be understood by all. दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि चाहे आप किसी लोअर ग्रेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप किसी हायर ग्रेड जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको इंग्लिश में मिलना ही मिलना है। चाहे आप सी टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप एसटेट के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन टू से एनी काइंड ऑफ एग्जाम यू आर ट्राइंग टू पास, दिस क्वेश्चन विल बी देयर फॉर यू। फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच से फोकस कीजिएगा एंड मैं ये मानता हूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप मान के कीजिएगा स्पाइन ऑफ बॉडी है, बैकबोन। अगर आपकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कमांड है तो आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं। आप क्लॉजेस को आंसर दे सकते हैं, आप फ्रेजेस को आंसर दे सकते हैं, आप नरेशंस को आंसर दे सकते हैं, आप वॉइस के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। फॉर दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच. So today I am going to discuss this very important topic which is very common and which is all the time asked in all the competitive exams, and that is called parts of speech. And as you all know, it's a long topic, it will take some time to understand. Friends, there are 8 parts of speech of English language. We will be discussing one by one. Today I will start with the very first part of speech, which is very important from examination point of view, that is called noun. Noun and its types. Friends, as we all know that noun is a name of a person, place, of thing. Noun, name of a person, place or thing. Very simple. But if I ask you, by giving a question, by giving a sentence, if I ask you which type of noun is this, I am sure you will start thinking twice or thrice. Let me ask you. Radha goes to Delhi University. See friends, there is a sentence, Radha goes to Delhi University. Friends, if I ask you which type of part of speech is this, any idea? Delhi. Delhi is the name of place. So it means एक noun है, एक संज्ञा है, isn't it? और university, it is again a name of an institute of any institution's name. So ये भी noun है, isn't it? लेकिन अगर मैं friends आपको बोलूं कि ये noun नहीं है, ये एक adjective है. What is this? Now you will be thinking that Rohit is teaching something wrong. But yes friend, it's true that it's an adjective, not a noun. अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखता, राधा lives in Delhi. Friends, here Delhi is a noun. But here Delhi is not a noun, it's an adjective. Why? Because this word is describing another noun which is university. So it's an adjective. We will discuss about this, but today our topic is noun. So मैं आपको बताऊंगा कि noun, जैसे आपको पता है noun क्या होता है, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी स्थान या आइडिया के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. Noun is the name of a person, place, thing or any idea. But we will be discussing that how many types of nouns are there, which are very important from examination point of view. Friends, noun is very important every time
examiners ask this question. And how do they ask? You will be given an unseen passage, and from unseen passage 2 or 3 sentences will be taken out, and from that sentences 1 or 2 words will be underlined or will be highlighted, and you will be given some options. You are supposed to give the correct answer by reading the sentence, by understanding the type of part of speech. तो मैं आपको बताता हूं, देखिए नाउन होता क्या है. नाउन बहुत आसान तरीका आपको बताता हूं. मान लीजिए एक सर्कल हमने बना लीजिए. Let's suppose noun. As I told you, noun is the name of a person, place or thing. अब उसकी बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं. First, I will just discuss only those topics which are very important from your exams. Otherwise, grammar is vast. बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आनी है. तो फर्स्ट इज कॉल्ड फ्रेंड्स common noun. What do we call it? Common noun. Then comes proper noun. Common noun, then proper noun, then collective noun. Third one. Then comes very, very important, friends, abstract noun. Mostly our examiner asks this type of noun, abstract noun. होता क्या है? I will discuss. Another noun is there, material noun and countable noun, uncountable noun, concrete noun, many others noun, but basically they ask from these types of noun. Common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, material noun, countable noun and uncountable noun. Understood? These are called noun. अब नाउन के अंदर मैक्सिमम टाइम वो पूछते क्या हैं? देखिए बहुत कॉमन चीज है. अगर मैं आपसे पूछूं ताजमहल, यू विल से इट्स ए नाउन. अगर मैं पूछूं विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस, एनी आइडिया? ताजमहल कौन सा नाउन है? इन कैटेगरीज में ताजमहल कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? इससे, 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 इससे या इससे? एनी आइडिया? आप में से बहुत लोगों को आंसर पता होगा. बहुत लोग सोच रहे होंगे, थिंकिंग, कीप थिंकिंग, क्योंकि आप सोचते ही रह जाएंगे. आपको आंसर, अगर आपको मिले भी का आंसर, पर घड़ी नहीं रुकने वाली आपके लिए. तो आपको यू हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, एज वेल एज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर द टाइम, बिकॉज speed with accuracy. I always tell my students that always focus on the speed, accuracy. What happens at the time of exam when we are sitting in the examination hall? We focus on speed, we compromise with accuracy, and if we want to become more accurate, we compromise with speed. And that's why at the end what happens, many of us say कि अगर मुझे और 5 मिनट मिलते और 10 मिनट मिलते तो मैं पेपर कर जाता. तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस अलॉट. बट प्रैक्टिस आप तभी तो करेंगे जब आपको कोई एक मेथड, कोई एक टॉपिक आपके दिमाग में तो आए. तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है. सो फ्रेंड्स, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. सो व्हाट इज कॉल्ड कॉमन नाउन फ्रेंड्स? अ थिंग विच इज वेरी कॉमन, एवरीबडी नोज. उसको बोलते क्या है? अगर मैं बोलूं आपको, इफ यू वांट टू गो फ्रॉम हियर टू देयर बाय अ व्हीकल, सो व्हाट इज कॉल्ड दैट व्हीकल? कार. कॉमन चीज है, सबको पता है कार क्या होती है. इसी तरह से वी हैव बाइक. कॉमन, वेरी कॉमन, वी ऑल नो व्हाट इज कॉल्ड बाइक. इट्स द नेम ऑफ अ थिंग, अ व्हीकल. ये कॉमन नाउन है. आप लोग नाउअडेज आप क्या कर रहे हैं? लैपटॉप पे काम कर रहे हैं.
लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, विच इज वेरी कॉमन, यू नो व्हाट इज कॉल्ड लैपटॉप, अगेन कॉमन नाउन। क्या है ये? कॉमन नाउन। आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, विच हेल्प अस टू वॉच समथिंग, दैट इज कॉल्ड मोबाइल, इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट, वी ऑल नो, कॉमन चीज है, कॉमन नाउन है। ऐसी बहुत सारी चीजें, किसी भी देश, किसी भी कंट्री का, किसी भी कंट्री के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रेसिडेंट भी होता है, वी ऑल नो, इजंट इट, वेरी कॉमन। तो आप ये देखेंगे ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? कॉमन नाउन के। आपको एग्जांपल और देता हूं, वेयर स्टूडेंट्स गो टू स्टडी, एक इंस्टीट्यूट होता है, एक बिल्डिंग होती है, इसमें स्टूडेंट जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के, क्या है उसका नाम? आप कहेंगे स्कूल, और आप कहेंगे हम सबको पता क्या होता है, अगेन कॉमन नाउन। वेयर द पेशेंट्स go for treatment, called hospital. Now see friends, these all names are examples of common noun, because these things are very very common, हम सबको पता है ये होती क्या है। अब common noun को अगर मैं proper noun बनाऊं, if somebody ask you that this word is a common noun or proper noun, so you will have to give answer. Now what happens? As I told you, a vehicle which has 4 tires, a steering, clutch and many other things, we know that what is this is called car. Now if I give a name to this particular entity, इस चीज को एक मैं नाम दे देता हूं और नाम बन जाता है आपका मारुति। Common name has been given a name, मारुति। और बताइए आपको कौन सी अच्छी गाड़ी लगती है? कुछ लोग बोलते हैं BMW, Audi, Skoda, i20. Now see friends, these are the names of a car. It is a name of a thing which is called car, and these are the name of that common noun. तो कॉमन नाउन को आपने नाम दिया तो क्या बन गए? प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हो गया। इस तरह देखिए आप, बाइक वेरी कॉमन, विच हैड 2 टायर्स, जिस पे बैठ के हम इधर से उधर जा सकते हैं, ये सब चीजें हैं, सबको पता है। अब बाइक को मैं आपको नाम देता हूं, हीरो होंडा। हीरो होंडा अब नहीं रहा, लेकिन हीरो होंडा बाइक का नेम है। अगर मैं आपको बोलूं CBG, इट्स ए नेम ऑफ अ बाइक, बहुत सारी चीजें हैं। आप इसी तरह स्कूटी का नाम लिख सकते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स। आप देखिए कि मैं नाम दे रहा हूं यहां पे। एक सलमान खान की बड़ी अच्छी ऐड आई थी, वो कहते थे सुजुकी हयाती यूं ही नहीं चलाते, तो सुजुकी के हयाते, सुजुकी बाइक, अगेन नेम। तो व्हेन द कॉमन नाउन्स आर गिवन नेम, दे बिकम प्रॉपर नाउन। लैपटॉप, लिनोवो, डेल, एप्पल and many others products are there. Common, हम सबको पता है what is called laptop, name of a thing, और उस थिंग को मैंने एक नाम दिया, एक पर्टिकुलर नाम दिया, तो वो बन गया क्या? प्रॉपर नाउन। यहीं पे मोबाइल है, मोबाइल पे आप कहेंगे सैमसंग, अगेन फिर एप्पल का फोन भी आता है, ओप्पो, नोकिया। तो आप देख रहे हैं यहां पे मैं कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन में चेंज कर रहा हूं। वाई? ये हमको सबको पता है व्हाट इज कॉल्ड मोबाइल, कॉमन थिंग, लेकिन उस कॉमन थिंग को मैं जब नाम दे रहा हूं, पर्टिकुलर नाम दे रहा हूं, सैमसंग, आई हैव नोकिया, तो नोकिया इज ए नेम ऑफ मोबाइल, तो आप क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। अब आप देखिएगा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिस्टर मोदी, इट्स ए नेम ऑफ अ पोस्ट, डेजिग्नेशन का नाम है, ये किसी पर्सन का नाम है जो प्राइम मिनिस्टर है। ट्रम्प, बहुत सारे हैं। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, अपने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर केजरीवाल, नेम ऑफ अ पर्सन हु इज द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ
दिस नेशन और दिस स्टेट। एक और है अपने योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट कॉमन नाउन बिकम प्रॉपर नाउन व्हेन दे आर गिवन नेम। स्कूल कॉमन चीज, सबको पता है, स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने, क्लासेस अटेंड की जाती हैं, एजुकेशन नॉलेज गेन की जाती है। एन इंस्टीट्यूट वेयर स्टूडेंट्स गो टू गेट स्टडी कॉल्ड टू गेट एजुकेशन कॉल्ड स्कूल। अब उस स्कूल को मैं एक नाम दे देता हूं। नाम अगर मैंने दिया, मान लीजिए डीपीएस, नेम ऑफ अ स्कूल, मॉडर्न कॉन्वेंट, इजंट इट। आपका आ जाएगा एक स्कूल और है, प्रगति पब्लिक स्कूल, एंड मैनी अदर स्कूल्स नेम आर देयर, वेरी फेमस स्कूल्स आर देयर इन दिल्ली, इन ऑल ओवर इंडिया। तो आप देखेंगे जो मैं कॉमन नाउन उसको मैं प्रॉपर नाउन बना रहा हूं, क्योंकि इस स्कूल को जो एक कॉमन नाउन है उसको मैंने एक नाम दिया। ये नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन नाम है, किसका नाम है? आप बोलेंगे इट्स ए नेम ऑफ अ स्कूल एंड स्कूल इज ए कॉमन नाउन, तो इट बिकम्स प्रॉपर नाउन। इसी तरह से हॉस्पिटल्स हैं, एम्स, फोर्टिस, मैनी अदर, सर गंगाराम, दिल्ली के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, उनको मैं नाम दे रहा हूं, मैक्स and many others. So you can say when the common nouns are given name, they become proper noun. Proper noun का मतलब जब आप किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को उसको एक नाम दे देते हैं, वो बन जाता है proper noun। और ऐसी चीजें जो कि नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, जो हम सबको पता है क्या होता है। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल्ड कॉमन नाउन एंड व्हाट इज कॉल्ड proper noun. But still, if you have some problems, if you have some issues, some doubts, you can message me. I will just try to make you understand once again. So this is called common noun and proper noun. Now we will discuss what is called collective noun and what is called abstract noun. Friends, abstract noun is very very important from examination point of view, in school board exams, in competitive exams. Abstract noun is mostly asked. अब आइएगा collective noun. Collective noun and abstract noun. The name itself tells us something. Collection. A collection of people and group of people, isn't it? A collection of people or things, हम things भी बोल सकते हैं इसको। अब a collection of people and things। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कलेक्टिव नाउन के अंदर? कलेक्टिव नाउन उसमें एक्चुअली में इट्स ए नेम ऑफ अ थिंग, बट उस चीज जो पर्टिकुलर जो नाउन है, ऑल्दो द नाउन इज सिंगुलर नंबर, बट देर आर सम ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स आर देयर, और वो क्या बोल गया? कलेक्टिव। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एक एग्जांपल है टीम। माई टीम इज द बेस्ट, माई टीम इज द बेस्ट। टीम सिंगुलर का हमें सेंस दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे वी हैव 11 पेयर्स आर देयर, 11 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? कलेक्शन ऑफ ग्रुप, कलेक्शन ऑफ पीपल आर देयर, और वो क्या बन गया? टीम बन गया। इसी तरह से क्या होता है? हर्ड, हर्ड ऑफ एनिमल्स, झुंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। हर्ड है एक, लेकिन उसमें एनिमल्स के नंबर्स हैं। बुके होता है, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स। देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, बुके क्या होता है? एक गुलदस्ता, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो जब बहुत सारे फ्लावर्स गैदर हुए एक साथ, उन्होंने क्या बनाया? बुके बनाया। जब बहुत सारे एनिमल्स एक साथ चले तो उन्होंने क्या बनाया? हार्ट बनाया। और जब बहुत सारे प्लेयर्स एक साथ जुड़े तो क्या बना? टीम। तो मैं जो बताना चाहता हूं आपको क्या है, कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्टिव नाउन के अंदर एक जो नाउन होता है उसके अंदर ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ थिंग्स होती हैं, और वो क्या बन जाता है? हमारा कलेक्टिव नाउन। Very simple to understand, but if you do not know how to differentiate
कौन सी चीज होती क्या है, कैसे उसको समझोगे। अदरवाइज क्या होगा, आपको सब नाउन ही दिख रहे हैं, सभी को पता है नाउन है, टीम किसी चीज का नाम है, हर्ड झुंड का नाम है, लेकिन आपसे वो पूछेगा विच टाइप ऑफ नाउन इज दिस, तो हम क्या करते हैं, हम अटक जाते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, एक जो स्कूल है, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट स्कूल इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि वहां पर वो एक बिल्डिंग को बता रहा है, लेकिन यहां पे स्कूल क्या है, स्कूल ऑफ फिश, स्कूल ऑफ फिश। तो यहां पर क्या हो गया, स्कूल, यहां पर स्कूल हो गया एक कलेक्टिव नाउन इंस्टेड ऑफ अ कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि यहां पे बहुत सारी फिश जब एक साथ गैदर होती हैं तो क्या बन जाता है, स्कूल ऑफ फिश। तो एक्सेप्शनल केसेस आर देयर, बट आपको समझना चाहिए, अगर ये स्कूल लिखा होता है अकेला स्कूल, दिस स्कूल इज गुड, तो स्कूल क्या हो गया वहां पे, कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है फिश ऑफ स्कूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं आपको एक बड़ा ही अच्छे तरीके से बताऊंगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, अ थिंग विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, a thing which is in our mind, which is in our imagination, which can be felt only. I mean to say, ऐसी चीजें जो किसी चीज का नाम तो है लेकिन आप उसको जो है अपनी जो आंखों से देख नहीं सकते, उसको टच नहीं कर सकते, बस आप उसको फील कर सकते हो। और फील कैसे कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें फील करने की। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स जो शायद आपने कभी सुना नहीं होगा ना कभी पढ़ा होगा, क्योंकि ये मेरी ही इन्वेंशन है, पता नहीं ये मेरे दिमाग में कैसे आया, मैं आपको बताता हूं क्या है। आपने ये नाम सुना है, एनीवन हु लव्स क्रिकेट, ये नाम पता है आपको फ्रेंड्स, MS धोनी। मैं ये कह के चलता हूं, मैं ये प्रोक्लेम कर रहा हूं कि वी आर बोर्न फॉर MS धोनी, वी डाई फॉर MS धोनी, we love MS Dhoni, we cannot live without MS Dhoni, we are working hard for MS Dhoni, we are earning money for MS Dhoni। अब आपको लगे ऐसा कैसे हो सकता है, MS धोनी, हर दुनिया का इंसान MS धोनी को चाहता है, whether you are from Delhi, whether you are from Bihar, whether you are from Haryana and whether you are from London, हर इंसान जो है MS धोनी चाहता ही है अपनी लाइफ में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिकॉज मुझे MS धोनी चाहिए, आप पढ़ रहे हैं बिकॉज आपको भी MS धोनी चाहिए। अब ये MS धोनी क्या है, ये MS धोनी वो क्रिकेटर नहीं, इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन जो चौके छक्के मारते हैं, नो। MS धोनी इज एन एग्जाम्पल सो दैट आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉल्ड व्हाट। मैंने ये एग्जाम्पल जानबूझ के लिए, आपका ध्यान चला गया MS धोनी पे जो क्रिकेटर है, लेकिन ये वो MS धोनी क्रिकेटर वो नहीं है। ये क्रिकेटर क्या, आप देखिएगा जितनी भी एग्जांपल्स मैं देने जा रहा हूं आपको, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हैं। यू कैन ओनली फील देम, यू कैन नॉट टच देम, यू कैन नॉट सी देम। फर्स्ट इज मनी। अब मनी पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि मनी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे, हम गिन सकते हैं, हम देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं मनी हम गिनते नहीं है, हम नोट्स को, रुपीज को गिनते हैं। किसी के पास गोल्ड है, किसी के पास प्रॉपर्टी है, उसके पास जो वेल्थ है वो सब मनी में आता है काउंट। तो मनी को हम फील करते हैं, अरे कितना पैसा है इसके पास। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ उसके पास नोट्स लेके चल रहा है, मनी को हम फील करते हैं। तो मनी, आप बताइए चाहिए कि नहीं आपको, इजंट इट? अब आप आइएगा दूसरा, सक्सेस। अब बोलिए नहीं चाहिए हमें MS धोनी। मैंने आपको पहले ही बोला था दुनिया का हर इंसान, एवरीबडी, वेदर फ्रॉम इंडिया, वेदर फ्रॉम UK, एवरीबडी इज लिविंग फॉर MS धोनी, एवरीबडी इज डाइंग फॉर MS धोनी एंड एवरीबडी वांट MS धोनी। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो नहीं चाहता कि उनके पास MS धोनी ना हो। अब मनी, सक्सेस। अब आप आइएगा डिजायर। बोलिए डिजायर होनी चाहिए हर इंसान के पास या नहीं होनी चाहिए ना? यस। देन कम्स हैप्पीनेस। देखते चलिएगा और आपका आंसर यस में चलता चलेगा। जो आप नो सोच रहे थे ना पहले, आप अपने आप भी बोलेंगे यस, वी वांट। अपॉर्चुनिटी। बोलिए फ्रेंड्स, लाइफ में चाहिए अपॉर्चुनिटीज? यस। देन कम्स फ्रेंड नेम।
नेम की ही तो लड़ाई है, बोलिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंस। नाउ सी फ्रेंड्स, MS Dhoni stands for what? This is the perfect example of abstract noun. All these words are examples of abstract noun. और आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो success can not be seen, success can be felt. Desire cannot be seen. हमारे माइंड में होती है, हमारे दिल में होती है एक। हैप्पीनेस, आप देख सकते हैं हैप्पीनेस को, आपको आएगी हैप्पीनेस कि देखो मैं आपके अंदर हूं, आप हंस रहे हो, नहीं। हैप्पीनेस कैन बी फेल्ट ओनली। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को आप देखते हैं क्या कि वो सामने अपॉर्चुनिटी है और मैं ये मिल गई मुझे, नहीं। अपॉर्चुनिटी को फील किया जाता है। तो ऐसी कोई भी चीज जो हम फील करते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन में, जो हमारे माइंड में है, और उनको जब हम नाम दे देते हैं कोई चीज का, तो वो बन जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम, हर इंसान नेम चाहता है, तो क्या बनेगा ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस, वी आर ऑल वर्किंग हार्डर टू गेट इंपॉर्टेंस। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपने, ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, एनीथिंग विच कैन बी ओनली फेल्ट और विच इज इन आवर माइंड ओनली। अंडरस्टूड? अगर आपको कोई भी किसी तरह की कोई डाउट हो रही है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज करके बताइएगा, मैं आपको उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा, दोबारा कोई वीडियो बनाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की वीडियो बनाने के पीछे एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी तरह से आपको कोई तो एटलीस्ट समझा दे कि होता क्या है। हम बहुत सारी क्लासेस लेते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं परफेक्टली आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं सबसे ईजी मेथड जो यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको तुरंत समझ में आ जाए, एंड आई एम नोइंगली डेलिबरेटली आई एम यूजिंग बाइलिंगुअल मेथड, सो डैट मेरा जो बता रहा हूँ सभी को समझ में आए, किसी को कॉम्प्लेक्स ना आए कि ऐसी लैंग्वेज में क्यों बोल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश को सिर्फ हम इंग्लिश के थ्रू समझा सकते हैं, इंग्लिश को हम बहुत सारी लैंग्वेजेज में समझा सकते हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आगे चलते हैं। Now we will discuss what is called material noun. Till now we have discussed common noun, proper noun, collective noun and abstract noun. Material noun is also very important. It is very easy to understand, but it is given in competitive exams, and that's why we have to learn. You never know what can be asked in competitive exams. They can ask anything. Students mostly ask me, sir, what can be asked? I myself don't know what can be asked. You have to know each and everything. You do not have any other option. And not only knowing something, you have to understand thoroughly. आपको पता होना चाहिए कि देखते कि आपका आंसर कहाँ जा रहा है, अदरवाइज क्या होता है, आप बाद में रिपेंट करते हैं कि आंसर आई वॉन्टेड टू गिव दिस आंसर बट समहाउ आई मेड मिस्टेक। तो ध्यान से देखिएगा, मटीरियल नाउन क्या होता है। मटीरियल as the name itself telling us a lot, a thing which is made of a substance or a material। ऐसी कोई भी चीज जो किसी मटेरियल से या किसी सब्सटेंस से बनती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूं, सिल्वर, गोल्ड, प्लास्टिक, सब्सटेंस मिक्स होता है इसमें, कोई ना कोई इसके अंदर आपको मटेरियल मिलेगा। तो ये चीजें क्या होती हैं, आयरन, ये सब एक मटेरियल नाउन का एग्जांपल है। डायमंड, किस चीज के एग्जांपल्स हैं सारे, मटेरियल नाउन के, बिकॉज दे आर मेड ऑफ मटेरियल एनी सब्सटेंस। तो इसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। जब कोई चीज, कोई नाउन जो किसी मटेरियल से बनती है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ फ्रेंड, दिस इज, सी व्हाट हैपेंस हियर, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक लगाइएगा आप, द थिंग विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, नंबर्स में होंगी जिनको हम गिन सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं चिल्ड्रन, आप चिल्ड्रन को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं ना। बॉयज, बॉयज, देखिए कॉमन नाउन है, लेकिन कॉमन नाउन को हम गिन भी सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन।
वो आपसे पर्टिकुलर पूछेगा काउंटेबल नाउन कौन सा। जब आपसे पूछेगा काउंटेबल नाउन तो आप बोलेंगे जिसको हम गिन सकें, विच कैन बी काउंटेड, तो काउंटेबल नाउन है। अगर आपसे पूछेगा कि बॉय क्या है तो आप बोलेंगे इट्स अ कॉमन नाउन, वी नो हु इज अ बॉय। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि बॉयज काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल, तो आप जाएंगे काउंटेबल नाउन के साथ, क्योंकि आप बॉयज को गिन सकते हो। बोटल्स हम गिन सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम गिन सकें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या होता है फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते, गिन ही नहीं पाएंगे। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताऊं तो मैक्सिमम अनकाउंटेबल नाउन के एग्जांपल्स आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन से ही मिलेंगे। अगर मैं आपको बोलूं एडवाइस, क्या आप एडवाइस को गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, नहीं गिन सकते आप। वाटर, एयर, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनको आप गिन नहीं सकते। साउंड, ऐसी चीजें जिनको हम गिन ना सकें। ग्रीफ, इजंट इट, ये देखिएगा आप, काउंटेबल नाउन को हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कैन नेवर बी काउंटेड, आप उसको गिन नहीं पाएंगे। तो ये होता है काउंटेबल नाउन और ये अनकाउंटेबल नाउन। अब आता है कॉन्क्रीट नाउन। ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज वेरी सेल्डम आस्क्ड इन एग्जाम्स, बट as an English instructor it is my prime duty to let you know, to make you understand each and everything. जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप स्कूल के स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं सब चीजें, और आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है। नॉलेज के लिए तो सीखना पड़ेगा ना आपको। सी, कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है, देखिए ये सब नाउन्स हैं, वॉट एवर आई एम टेलिंग यू एंड वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू, आई हैव टोल्ड यू सो फार, ये सभी नाउन्स हैं। लेकिन मैं आपको नाउन्स के टाइप्स बता रहा हूं कि कौन सी नाउन को क्या कौन सी नाउन बोलते हैं, विच नाउन इज कॉल्ड व्हाट। नाउ सी कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी नाउन जिसको हम अपने 5 सेंस के हेल्प से हम उनको टच भी कर सकते हैं। वी कैन टच देम, वी कैन सी देम, वी कैन स्मेल देम, बहुत सारी चीजें हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट, जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपको फैन, अब फैन में वो आपसे पूछेगा फैन क्या है तो आप बोलेंगे कॉमन नाउन है, सबको पता है व्हाट इज कॉल्ड फैन। लेकिन अगर वो पूछे, ये ऑप्शन ना देके आपसे पूछेगा कि फैन में इन तीनों में से कौन सा है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और कॉन्क्रीट, देन यू विल से काउंटेबल भी, क्योंकि फैन को गिन सकते हैं, बट योर आंसर विल बी कॉन्क्रीट नाउन। वो आपको ऐसे कंफ्यूज नहीं करेगा एग्जाम के अंदर, वो आपको क्लियर आंसर देगा कि कॉन्क्रीट नाउन का एग्जांपल दीजिए आप, तो आप बोलेंगे फैन। हम कर सकते हैं फूड, हम फूड को देख सकते हैं, इवन स्मेल भी कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम चीज़ों को देख सकते हैं। मेनली दे आस्क दीज टाइप्स ऑफ नाउन्स, बट समटाइम दे ऑल्सो आस्क व्हाट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट। मैंने आपको बताया कॉमन नाउन, कोई भी कॉमन नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग विच इज वेरी कॉमन। प्रॉपर नाउन, व्हेन द कॉमन नाउन्स आर गिवन नेम्स। कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। Abstract noun, which cannot be seen, which cannot be touched, only can be felt. Material noun, which is made of a material, a substance. Countable noun, which can be counted. Uncountable noun, which cannot be counted. Concrete noun, which can be seen, smelled, touched, and the noun which needs our 5 sense. हम अपने उसके 5 सेंस के थ्रू हम उसको बता सकते हैं कि ये कौन सी चीज है। तो फ्रेंड्स, दिस टॉपिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत आसान है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यू कैन नेवर गिव योर करेक्ट आंसर। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस, आई थिंक यू शुड लर्न इट। इफ यू लर्न इट, you will get confidence, and if you are confident, you will get success confidently. Till then, keep watching my videos, and one more thing I want to tell, keep criticizing but keep supporting.